Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is on the construction of judgment, means how to construct, how to write, how to draft a judgment. First of all, we have to know what the judgment means. A judgment is the expression of the opinion of court arrived at after consideration of evidence and all arguments within prescribed in the code. Code means अगर सिविल केस है तो सिविल प्रोसीजर कोड और अगर क्रिमिनल है तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. It refers to the final decision of the criminal court या civil court whereby person either acquitted or convicted. It does not include order of the discharge in the criminal matter. और अगर civil case है तो either the matter has been decreed or the application the suit has been dismissed. What are the contents of the for a proper and a good judgment? सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि कोर्ट का नाम लिखेंगे एंड द कोर्ट ऑफ जो भी है, फॉर एग्जांपल इन द कोर्ट ऑफ सेशंस जज सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो. देयर आफ्टर क्रिमिनल केस या सेशन केस या एफसी सूट नंबर जो भी आपका केस का पर्टिकुलर है, जो हमने बेल में डिस्कस किया था सेम वही मैटर है मोस्टली. आप उसमें एप्लीकेशन नंबर लिखेंगे या क्रिमिनल केस नंबर लिखेंगे, व्हाट्स एवर दैट मे बी. उसके बाद आप क्या करेंगे कि पार्टी के नाम लिखेंगे, द स्टेट वर्सेस सो एंड सो मिस्टर ए बी एंड सी, या अगर सिविल सूट है तो ए बी वर्सेस प्लेंटिफ वर्सेस सो एंड सो सो एंड सो. हम इस वक्त पहले क्रिमिनल के जजमेंट को डिस्कस कर लेते हैं. उसके बाद आप लिखेंगे क्राइम नंबर, अंडर सेक्शन एंड पुलिस स्टेशन. ये सेम वही तरीका है जो हम बेल एप्लीकेशन में डिस्कस कर चुके हैं. देयर आफ्टर आप उन वकीलों के नाम लिखेंगे जो कि प्रेजेंट है और उसके बाद आप लिखेंगे जजमेंट. तो पहले हम क्या लिखते थे, ऑर्डर लिखते थे, अब हम जजमेंट लिखेंगे, उसके नीचे डेट डाल देंगे. उसके बाद हम अगर इसको स्टार्ट करेंगे तो एक सैंपल मेरे पास है जो कि मैं इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद आप लोगों को इसे भी शेयर करूंगा. The above named accused was sent up by the SHO of police station so and so to state the tribal offence of 13 AB Arms Ordinance 1950. अब यहाँ से हमने कहा कि स्टार्ट से ही स्टार्ट लेना है. तो a formal charge exhibit 2 was framed against the accused to which he did not plead guilty and claimed to be tried. तो उन्होंने अपनी गिल्ट को एडमिट नहीं किया, तो इस वजह से हम उसकी ट्रायल चला रहे हैं. Thereafter we have to start the facts. मगर पहले हम जब बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते थे तो वहाँ पे हम फैक्ट्स की हेडिंग दे देते थे, मगर इन जजमेंट we will not put the heading of the facts. We simply start writing the facts. The prosecution story in a nutshell as per the charge sheet is that police party headed by SHO informed by his 2 police constable, namely so and so, during course of their duty found the accused armed with a gun at public place T, वहाँ पे जगह मेंशन करेंगे, at time so and so. On inquiry, the accused failed to furnish the license. The SHO recovered the incriminating gun from the possession of accused, prepared memo of recovery of arrest so and so. जो भी आपको फैक्ट्स हैं वो आप सारे फैक्ट लिखेंगे. तो उसके बाद जितने भी विटनेसेस एग्जामिन हुए हैं आप उन विटनेसेस के नेम लिखेंगे. The prosecution in support of his case examined the complainant of the case IO, namely so and so, exhibit 3, he produced FIR, जो कुछ भी है वो सारे लिखेंगे. पहले बेल एप्लीकेशन में और जजमेंट में ये फर्क है कि हम जजमेंट में क्रिमिनल केस के जजमेंट में हम पॉइंट्स मेंशन करते हैं कि पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन कि ये 3 पॉइंट्स हैं, इसको मैंने डिस्कस करना है. अब यहाँ पे इस केस में 3 पॉइंट्स डिस्कस किए गए.
Point number 1, whether accused was arrested by the police party from the place T at 1 a.m. on 1st May 2003. अब इसका हमें पॉइंट 1 को या तो अफर्मेटिव में जवाब देना है या नेगेटिव में देना है. Number 2, whether incriminating recovery of gun was effected from the person of accused. If so का मतलब है कि अगर हाँ, what offense is committed by the accused. उसके बाद जज लिखेगा कि my finding on the above points with reasons as under. Point number 1, on this point there is evidence of IO who produced copy of program entry so and so, so and so, so and so. ये सारी जितने भी रीजंस है, जितने भी लॉजिक हैं, वो सारे डिस्कस करके फिर लिखेगा the accused in his statement had not denied the arrest by the police at the daytime mentioned in the FIR. Thus the point number 1 is answered in affirmative. तो इसको अफर्मेटिव का मतलब है कि पॉजिटिव में जवाब आया. जब इस जवाब पॉजिटिव में आया, इट मीन्स कि द पर्सन वाज अरेस्टेड फ्रॉम द प्लेस टी एट फॉर एग्जांपल 1 AM ऑन डेटेड 1st May 2003. इसका मतलब है कि प्रोसिक्यूशन हैज प्रूफ द पॉइंट नंबर 1. नंबर 2, कि whether incriminating recovery of gun was effected from the person of accused or not. तो इसके जवाब में भी ये सारा डिस्कस करेगा. in the on this point the prosecution, in this case the prosecution incriminating recovery effected from the accused at place T and so and so, so and so, and so and so. FIR lodged on behalf of state. The version of IO was corroborated by the Mushir above named in there too. The accused in his statement under section 342 CRPC simply denied so and so, so and so. तो उसके बाद ये अपने रीजन स्वीकार करेगा कि वाई, मतलब कि हम इस चीज के ऊपर क्यों रिलाय कर रहे हैं. अगर आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तब भी आप उसके रीजंस देंगे, लॉजिक्स देंगे, और अगर आप उन्हें डिनाई कर रहे हैं तब भी आप उन्हें रीजंस देंगे या फिर लॉजिक देंगे. अब अक्यूज पर्सन के वकील ने या उन्होंने ये प्ली उठाई है कि सेक्शन 103 CRPC के तहत कि प्राइवेट पर्सन को मशीर करके रिकवरी की जाए या अरेस्ट किया जाए. तो इसके रिबटल में जज साहब कहते हैं कि the provision of 103 CRPC is applicable in case of search of place, not for the search of person. मतलब कि उसको रिबट कर रहा है कि उनकी प्ली जो है वो गलत है. The court also appreciate the surrounding circumstances whereby the accused was arrested at the odd hours of the night, रात के 1 बजे. On that time there could not be expected was arrest of the private person from the locality. अब पहली बात तो यह है कि रात के 1 बजे वो बंदा वहां पे खड़ा हुआ था. दूसरी बात यह है कि वो बंदा रात के 1 बजे वहां पे लोकेलिटी इतनी वीरान थी या सुनसान थी जिसकी वजह से आम लोगों का या आम शहरियों का होना पॉसिबल नहीं था. तीसरी बात यह है कि उसके पास जो वेपन था वो अनरजिस्टर्ड वेपन था. और चौथी बात यह है कि वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया, ना ही कोई ऐसी प्ली ले सका कि मैं यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे क्यों रुका हुआ हूँ. एंड सेकेंडली he also relied upon a case like NRL 2001 criminal Peshawar 188 wherein it is held that under the armed ordinance persons from the public do not come forward to become recovery witness and police officials are as good witness as anybody else. कि वो एक सेकंड होल्ड. सॉरी. देन वो इस चीज को रिलाय कर रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट ने NLR 2008 1
क्रिमिनल पेशावर 188 पेज नंबर जो केस लाया है उसमें ये लिखा है कि जो आम ऑर्डिनेंस के केसेस हैं वहाँ पे जो जनरल पब्लिक है वो बहुत कम आती है टू बिकम अ विटनेस, क्योंकि जिस बंदे के पास अनलेसन वेपन है तो डेफिनेटली ही इज अ क्रिमिनल पर्सन। तो आज अगर हम इसके केस में मशीर हो रहे हैं, विटनेस हो रहे हैं, तो कल ये हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस वजह से पुलिस ऑफिशियल इन दीज केसेस आर द गुड विटनेसेस एज अदर्स। Thus, the prosecution has proved beyond any shadow of the beyond all reasonable doubts the charge as to recovery of incriminating gun from the possession of the person of the accused on the day and time. Right. The point number 2 is answered in affirmative. जब पॉइंट नंबर 1 है कि पुलिस ने इसको अरेस्ट किया, पॉइंट नंबर 2 है कि इनको इसी वक्त क्या कहते हैं रिकवरी भी हुई है। Then point number 3, what offense has committed and what the punishment should be. On strength of the finding number 1 and 2, the court has to come to conclusion that the accused has committed an offense punishable under section 13A West Pakistan Arms Ordinance 1965. The incriminating weapon of the gun was found in the control and possession of accused, which has been recovered from the accused by the police officer M, जो उसका नाम है, in presence of his party members during course of their patrol duty. Consequently, I means the judge, court, I hold the accused guilty of the charge of offense and convict him with regressment imprisonment for 3 years. The accused is present on bail. His bail bond cancelled and surety discharged. He is taken in custody and sent up to jail to serve out his sentence as aforesaid. Announced in open court given under my seal, under my hand and seal of the court on this 20th day of March 2020. उसके बाद सेशन जज उसके सिग्नेचर। एनी क्वेश्चन? या तो मुझे पहले मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ आपके अटेंडेंस के, उसके बाद आंसर करते हैं। जो कि मैंने आपको बताया है, नेक्स्ट क्लास जो अभी हमारे 10 बजे होगी तो उसमें हम इनके मेन इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सारे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और पेपर में क्योंकि कुछ पता नहीं कि पेपर आपके ऑनलाइन हो या आपके फिजिकली हो, तो आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, फिर आपको जजमेंट अपने ही हिसाब से उसके ऊपर बनाना है। ओके, आई विल रिपीट। तो हम कोड नेम लिखेंगे, राइट। आमिर आप रिस्पॉन्स करते जाएं। कोड नेम, राइट। उसके बाद क्रिमिनल केस नंबर, जो कि केस नंबर होगा हम वो मेंशन करेंगे, क्रिमिनल केस नंबर, राइट। उसके बाद हम पार्टी नेम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर स्टेट पार्टी है, द स्टेट वर्सेस ABC, वो अक्यूज पर्सन होंगे। पार्टी नेम्स, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द केसेस या FIR, फॉर एग्जांपल अंडर सेक्शन कौन कौन से ऑफेंसेस में बंदा बुक है, क्राइम नंबर मतलब FIR नंबर 20 ऑफ 2020, पुलिस स्टेशन जो भी होगा वो मेंशन करेंगे। रिपीट सर, पॉइंट नंबर 4 रिपीट करो सर। आमिर रिपीट पॉइंट नंबर 4।
हमारा बाबला बुधाए वाला आमिर रिपीट पॉइंट नंबर 4. Description of cases. जिसमें एफआईआर नंबर अंडर सेक्शन पुलिस स्टेशन या एफआईआर के बारे में लिखना हुआ. जी, एफआईआर नंबर, पुलिस स्टेशन और अंडर सेक्शन. राइट. उसके बाद द नेम ऑफ द काउंसल्स या एडवोकेट्स, वकीलों के नाम. The name of counsels. The Theo. राइट. एंड दे बासित तव्हां स्क्रीनशॉट वठी छॾिजो. तो जो पार्टिसिपेंट हाणे 76 आहिनि, जॾहिं महिल मूं वरिता 72 हुया. ठीक है बाबा. उनखां पोइ जजमेंट लिखंदासीं. जजमेंट लिखेंगे वर्ड जजमेंट, अंडरलाइन करके उसके नीचे डेट डाल देंगे. नीचे डेट लिखेंगे. जजमेंट का पोस्टर डेट. जी, जजमेंट लिखी करे, जजमेंट को अंडरलाइन करके उसके नीचे डेट लिख देंगे. ओके सर. Thereafter we will start that for example this case has been sent from the magistrate, या ये केस जो है हमें सेशन जज ने हमें रेफर किया, या whatsoever the case में भी आपको ये केस कैसे मिला वो पिन मेंशन करेंगे. उसके बाद जिस तरह इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, the SHO PS so and so has sent the present accused with allegations that the gun was recovered from his possession and he stands charged under section 265C. He pleaded not guilty and claimed for the trial. उसके बाद ये फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद thereafter we will write the facts of the prosecution. फैक्ट्स की जब भी हम बात करें सर आवाज નથી અચે. विसर जजमेंट का पोइ कहिड़ी पॉइंट आहे? जजमेंट का पोइ आहे डेट. डेट का पोइ डेट का पोइ आहे त वरी केस जो रेफरेंस लिखणो आहे. हा आमिर जी जी. इन जो पोइ फोटो कढी तव्हां ग्रुप ते रखी छॾिजो. बाक़ी समा साहब तव्हां फ़िलहाल अमर जो सर खे ॻाल्हाइण ॾियो, पोइ वरी ग्रुप ते अची वेंदो, पाण ई आमिर रखंदो. सर वटि बि सैंपल हूंदो न त सर खे चवंदा यार ये इशू तो रही आहे. हा सर बि नोट शेयर कंदो. हा जी बाबा. सर. सो उसके बाद हम जब प्रोसिक्यूशन का के फैक्ट्स लिखेंगे, मीन्स के एफआईआर लिखेंगे, राइट. फैक्ट्स ऑफ द एफआईआर. आमिर. जी सर. Thereafter we will write या mention the plea of the accused. Accused क्या कहना चाह रहा है? Plea of accused. Yes. Thereafter we will set few points for the determination. या हम कुछ points mention करेंगे. Point number 1, point number 2, point number 3. जो अगर सिविल हो तो उसमें इश्यूज फ्रेम होते हैं, और अगर क्रिमिनल केस हो तो उसमें
क्रिमिनल केसेस में हम पॉइंट्स लिखते हैं कि पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 जितने भी पॉइंट्स हैं डिटर्मिनेशन के लिए, जिसके ऊपर हमें एविडेंस लीड करनी होती है। जी सर। बासित काइंडली अटेंडेंस के रिसीवर जो 78 थे आहिनि, ईअं न थिए जो केरु रहिजी वञे। 79 आहिनि सर तव्हां सां गॾु। स्क्रीनशॉट वठी छॾियो। राइट जी सर। आमिर, उन खां पोइ उसके बाद वो जो पॉइंट्स हैं वो 1 बाय 1 सारे डिस्कस करने होते हैं। जी सर। उस पॉइंट्स में मोस्टली हम कोशिश करेंगे तो सबसे पहले प्रोसिक्यूशन ने जो एविडेंस लीड की है वो मेंशन करें। देयर आफ्टर अगर अक्यूज ने कोई प्ली ली है तो वो मेंशन करें। राइट जी सर। उसके बाद हम बीइंग अ जज उसको हमने पहले पढ़ा था कि हम को कनेक्ट करेंगे फैक्ट्स को लॉ के ऊपर कि इनके ऊपर लॉ क्या कहती है, इन फैक्ट्स के ऊपर लॉ क्या कहती है। जी सर। अगर लॉ कहती है कि ये फैक्ट्स हों तो इसका जवाब अफर्मेटिव में आता है, देन वी विल आंसर दिस पॉइंट इन अफर्मेटिव। अगर वो साबित नहीं हो पा रहा फिर हम उन्हें नेगेटिव में आंसर करेंगे। राइट ये सर थोड़ा नहीं रिपीट करो सर फैक्ट्स के। फैक्ट में तो सबसे पहले हम एफआईआर के फैक्ट्स लिखेंगे। सर बीइंग अ जज तव्हां जेको फैक्ट के तव्हां जज कंदव